ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں ہونے والا جلسہ 27 سپٹمبر کا اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے اپنے کافی سوال چھوڑ گیا ہے. پورے پاکستان میں چونکہ اس جلسے کی اتنی کوریج نہیں کی گئی، میڈیا پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں، تو اس کی کوئی صحیح پکچر عوام تک نہیں پہنچی. اب آج ہم اس جلسے کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک فگر ڈاکٹر فرید ملک صاحب. سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونے والا جلسہ اپنے پیچھے کیا اثرات چھوڑ گیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اسی دن پہنچا پشاور تو کچھ چیزیں تو بڑے عیاں تھیں. ایک تو یہ کہ جو کے پی جو ہے وہ سالڈلی بیہائنڈ خان صاحب ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا جی، وقتاً فوقتاً سرویز آتے رہتے ہیں یا میڈیا رپورٹس کے وہ تو جی وہ تو بڑی چینج اور اس طرح کی کوئی کے پی بھی بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کے خلاف کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی لائلٹی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، جو لوگ مجھے وہاں ملے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ملٹری ایکشن کے بالکل خلاف ہے، کوئی ملٹری ایکشن کے فیور میں نہیں تھا وہاں بالکل. تیسری یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو چوٹیں لگیں یا جن کے لوگ نومبر میں جو افیکٹ ہوئے، جو نومبر کی جو وہاں ہوا اسلام آباد میں ایپیسوڈ، وہ کافی نالاں تھے اور کافی جوش و خروش میں تھے. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نزاکت کو سمجھیں اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ یہاں ہو. یہ فورس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کہاں سے فیل آئی کہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے پیکٹ علی امین گنڈاپور کے خلاف ہیں؟ خلاف اس لحاظ سے نہیں تھے. خلاف ان دا سینس کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جس طریقے سے آگے جانا چاہ رہے ہیں، گنڈاپور جو ہیں وہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ نہ ہو. صحیح. تو ان کا یہ خیال تھا کہ بات کافی آگے جا چکی ہے اور یہ ہے کہ کانفلکٹ کے بغیر غالباً یہ سولوشن نہیں ہوگا. تو گنڈاپور وہ راستے میں حائل ہیں. وہ ایک قسم کی جو انگریزی میں کہتے ہیں دی وائس آف سینٹی، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم بھی بچ جائے اور کوئی اس میں راستہ بھی نکلا ہے. یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور یا اپنی سیٹ کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں؟ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ میں نے اتنا وقت نہیں گزارا وہاں، مگر یہ کہنا مشکل ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ہی از واکنگ اے فائن لائن، جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی از واکنگ اے فائن لائن. Then what's wrong with it? Like if he believes in dialogue with the establishment and he tries to get out the things done through talks, تو it should be done. کیا مگر دوسری طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. خاص طور پہ جو حکمران جماعت ہے وہ چاہتی ہے کہ کانفلکٹ ہو، دیکھیں نا، اور وہ اس کو معاملے کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کانفلکٹ میں ان کا فائدہ ہے. صحیح. جب دو طاقتیں، جس طرح آپ نے کہا تھا پلرز جو دو ہیں اس وقت مقبولیت کے اور قبولیت کے، اگر وہ اب کلیش کریں گے تو جو تھرڈ فورس ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں نے وہاں محسوس کیا. مگر یہ ہے کہ ٹائم کا لاس ہو رہا ہے. دیکھیں نا، ایک جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو اوور ویلمنگ فیبرری 2024 کا جو مینڈیٹ تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نتائج بھی ہیں، جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس بھی تھے، جو کلیم کیا جا رہا ہے، وہ بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے. اور تیسری ایک اور چیز تھی کہ منرلز کا جو پوٹینشیل ہے وہ کسی صورت میں کے پی کے اس پہ سمجھوتا نہیں کرے گا بالکل. اور یہ بلوچستان کے مقابلے میں کے پی یونیفائڈ، مور یونیفائڈ، کیونکہ وہاں ایک قوم ہے اور وہ افغانستان سے کانفلکٹ بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ افغانستان سے کانفلکٹ میں ان کا پہلے بھی بہت نقصان ہوا ہے. وہ بالکل افغانستان سے کانفلکٹ نہیں چاہتے اور اپنے منرل ریسورسز پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے. یہ ان کی تھنکنگ اور یہ ان کی اپروچ تھی. تو اچھا، وہ جلسے کے حوالے سے بات کر لیں. اس میں وہ تھا ملک گیر جلسہ تھا، نیشن وائڈ. جی. تو دوسرے صوبوں سے اس میں پارٹیسپیشن؟ ہاں جی بالکل تھی جی. اور مگر یہ ہے کہ وہ بڑے طریقے سے آئے لوگ. اور میں بھی جب گیا تو میں جاتے ہوئے جی ٹی روڈ سے گیا، پھر میں راستے میں چیک کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ٹی روڈ پہ کوئی جگہ ناکے ہیں تو آپ جھنڈے وغیرہ وہ اوائڈ کرنا کیونکہ وہ کچھ چیک کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اسلام آباد سے آن ورڈ
मोटर वे इज़ मोर ओपन, क्योंकि उस पर GT रूट पे फिर कई जगह पे वो चेक कर लेते हैं, तो आप यू बेटर ऑफ गोइंग ऑन द मोटर वे। तो लोग बड़ी समझदारी से जो काफिले आए उन्होंने पंजाब की हदूद में डिस्प्ले नहीं किए अपने झंडे या पोस्टर या, और बड़ी खामोशी से वो, और मेरा ख्याल है कुछ लोग एक दिन पहले भी पहुंच गए थे, तो उस लिहाज से रिप्रेजेंटेशन जो थी वो अच्छी थी और सारे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन थी और साइज जलसे का बहुत अच्छा था। एक तो वो उन्होंने जगह ऐसी थी कि उसमें गुंजाइश काफ़ी थी, पंडाल भी काफ़ी बड़ा था, फिर इर्द गिर्द जो सड़कें थी उस पर भी लोग थे। अच्छा, लोगों को कुछ जो लोकेशन की जो तैयारी थी उस पर लोगों को कुछ शिकायत थी कि इतनी साफ़ नहीं थी और वहाँ मिट्टी और गड्ढा और इस तरह की चीज़ें थी, उस पर लोग भी नाराज़ थे गंडापुर साहब से कि उनको ज़्यादा इंतजाम बेहतर करने चाहिए थे। ये वहाँ ऑब्जर्वेशन मैंने। अच्छा, आपने एक दिन गुजारा होगा KP में, तो आपको ओवरऑल फील क्या आई गवर्नेंस की और लोगों के सेंटिमेंट की टुवर्ड्स गवर्नमेंट? देखिए जी, वो इस वक्त जो गवर्नेंस पे फोकस लोगों का कम है, जो पाकिस्तान का जो वे फॉरवर्ड है उस पे उनका फोकस ज़्यादा है। सी फॉर देम गवर्नेंस जो है वो एक माइनर इशू है फॉर देम एट दिस स्टेज, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी लीडरशिप में PTI की अब वो एक ऐसे मकाम पे वो समझते हैं कि हम अब वाकई हकीकी आज़ादी के करीब हैं और देयर इज़ नो गोइंग बैक। देखा ना, ये फीलिंग वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये डिले ना हो। क्योंकि वक्त से भी कुछ चीज़ें डिले से भी वो जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन के खिलाफ हैं लोग। बिल्कुल। और यही बात अली अमीन गंडापुर ने अपनी स्पीच में भी की है और शायद मीडिया ने वही हाईलाइट किया और एक नेगेटिव टोन में की है कि ये देखें कि जी ये एक जैसे यूं लगता है कि ये एक प्रो मिलिटेंट अप्रोच है जी। तो आप ऑन द ग्राउंड भी कह रहे हैं कि लोगों के जो ग्रास रूट लेवल पे जो यही राय है कि जी, और इमरान खान का भी यही मौक़िफ़ है। तो अगर इसके बावजूद हुकूमत जाती है तो फिर उससे क्या नताइज? बहुत बुरे नताइज, और अल्लाह ना करे ये हो, क्योंकि देखें फौज के लिए ऑपरेट करना होस्टाइल एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है। सी, क्योंकि ये बलूचिस्तान ज़्यादा होस्टाइल एनवायरनमेंट है बिकॉज यहाँ एक यूनिफाइड ग्रुप है सी जो टोटली अगेंस्ट है। इवन अमल वली खान ने भी मुखालफत की है मिलिट्री एक्शन की, यानी इनकी कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं है और किसी तरीके से भी वो नहीं चाहते कि यहाँ मिलिट्री एक्शन हो। देखो ना, क्योंकि वो समझते हैं कि मिलिट्री एक्शन से जो लोगों की आवाज़ है वो दबाई जाएगी और वो उससे हमारे जो वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, उस पर भी हमला होगा। तो वो किसी तरीके से मिलिट्री एक्शन नहीं चाहते, वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं, वरना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और अल्लाह ना करे कि ये उस हद तक जाए, क्योंकि ये हो सकता है। और वहाँ उनको ये शिकायतें मुझसे उन्होंने पूछा कि पंजाब में लोग क्यों नहीं निकलते बाहर। मैंने कहा जी लोग तो निकलते हैं, वो निकलने से पहले पकड़ लेते हैं उनको। एक रात पहले क्रैक डाउन। तो उनको मैंने फिर पंजाब का समझाया तो बड़े हैरान हुए सुन के। मैंने कहा पंजाब में लोगों को इतना असला नहीं है, अब लोगों का असला बहुत है, आपका असला की कदर नहीं। पंजाब में भी लोगों के पास असला, मैंने कहा अच्छे लोगों के पास पंजाब में असला नहीं है, पंजाब में गलत लोगों के पास असला है, अच्छे लोगों के पास असला नहीं है। देखो ना, तो ये उनके लिए समझने में थोड़ा थोड़ा उनको दुश्वारी हुई, मगर समझ आ गई उनको फिर बाद में। अच्छा, अब जलसा हो गया है जी, तो इसके क्या असरात आगे मुल्क के दूसरे हिस्सों में क्या होंगे? देखें जी, जो अपना KP और पंजाब तो सॉलिडली पीछे है PTI के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में यही ट्रेंड अब जो पहले भी जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं PTI की, जैसे कराची है और हैदराबाद है, कुछ इंटीरियर सिंध के पार्ट्स हैं, या बलूचिस्तान के जिन हिस्सों में 2018 में थी, वो मेरे ख्याल में वो सारी वेव परसिस्ट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि कोई ऐसी कोई बड़ी चेंज तो नहीं आई ना पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या सोशली स्पीकिंग, तो हालात उधर ही हैं। बल्कि मेरे ख्याल में कोई इमरान खान की मकबूलियत शायद कोई ज़्यादा जी जी, जो ख़ास तौर पे जो उनकी रेजिस्टेंस है और जो खड़े हुए हैं, और एक पंजाब का लीडर जिसकी बैकग्राउंड KP की, वो भी उसको तो अपने आप को वो ही समझते हैं ना कि ये हमारा है, और हालांकि वो पंजाब का एक फर्जंद है, वो खड़ा हुआ है, फाइट किया, वो समझते हैं हमारे लिए लड़ रहा है। उनको ये सेंस है, ये फीलिंग, विच इज़ ट्रू। आज तक किसी लीडर ने इतनी रेजिस्टेंस नहीं की जो इस वक्त रेजिस्टेंस हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इतनी रेजिस्टेंस नहीं हुई। नहीं, वो कराची से इलेक्शन लड़े, उधर से जीत जाते हैं, क्वेटा से उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है,
पारा चिनार से जी बिल्कुल ठीक। उनका वो होता है। तो ये एक ट्रू नेशनल लीडर जिसे अगर कहा जाए तो वो तो इमरान खान है। लेकिन इस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो ना मुल्क के मफाद में है, ना पावर टू बी के मफाद में है, ना PTI के मफाद में है। तो अल्लाह करे इसका कोई अच्छा एक कोई सलूशन निकल आए। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में क्या कुछ PTI को ऐसा करना चाहिए कि कोई दूसरी साइड का कोई दिल मोह हो जाए और वो मुज़ाकरात पे तैयार हो जाए? ये अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि जो अगर एग्रीमेंट हो जाए नेक्स्ट इलेक्शंस पे कि एक फ्री एंड फेयर नेक्स्ट इलेक्शन और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव और ये सारी जो चीज़ें हैं और जुडिशरी में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ज़बरदस्ती ये विड्रॉ कर ली जाएँ ताकि गुडविल मेजर्स क्रिएट हों। उससे ये ज़ाहिर होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको समझ आ गई है कि अब वो फॉरवर्ड गियर में नहीं जा सकते, अब उन्हें रुक के और रिवर्स गियर की तरफ जाना है। ये दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। अब वो फॉरवर्ड गियर लगाना बंद करें और एक न्यूट्रल गियर करें, और जब गियर न्यूट्रल होगा और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू होंगे तो फिर आस्ता आस्ता हम ये उस तरफ जा सकते हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है कि रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। देखें ना, या तो बहुत दूध की नहरें बह रही होती हैं और बड़ा शीरो शक्कर होते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही होती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अभी वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि वो हमारी पॉवर्टी जो है वो 25.7 तक पहुंच गई। जी। और ये पिछले लास्ट 3-4 ईयर्स में ऊपर। बिल्कुल। तो कोई इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अब अपना बेच के चीज़ें अगर आप ये शो कर रहे हैं कि जी हम बड़े कामयाब हैं, तो दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड। देखें ना, ये कोई तरीका नहीं है मुल्क को आगे ले जाने का। लोगों को सब पता है, पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक समझती है, और पब्लिक ये भी पता है कि एक लीडर है जो उनके लिए खड़ा हुआ है और जो फाइनेंशियली ईमानदार है, क्लीन है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एमिकेबल सेटलमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, और कोई इसका वे फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन वो वे फॉरवर्ड कैसे निकलेगा, हम हालात पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। आप हमारा प्रोग्राम वॉच करते रहें और हमें फीडबैक देते रहें। आपका बहुत शुक्रिया।